Dear students, today we are going to perform experiment number 8, that is to analyze a basic Wheatstone bridge under unbalanced condition. Second, the measure the value of unknown resistance of branch BC, which is the resistor Q. What is Wheatstone bridge? A Wheatstone bridge is an electrical circuit used to measure an unknown electrical resistance by balancing two legs of a bridge circuit, one leg of which includes the unknown component. The primary benefit of a circuit is its ability to provide extremely accurate measurements. Construction of Wheatstone bridge. It has four arms consisting of resistances P, Q, R and S. We can see this is the bridge circuit in which there are four resistances P, Q, R and S together with a voltage source. This is the DC voltage applied between A and C, and a null detector which is connected between B and D. This null detector may be a galvanometer or other sensitive current meter. The current through the galvanometer depends on the potential difference between the point B and D. What is the principle of Wheatstone bridge? Wheatstone bridge works on the principle of null deflection, that is, the ratio of their resistances are equal and no current flows through the circuit. Under normal condition, the bridge is in the unbalanced condition where current flows through the galvanometer. Bridge is said to be balanced when no current flows through the galvanometer. This condition is achieved by adjusting the known resistances and variable resistances. Analysis. We can analyze the bridge under balanced condition. The product of these resistors in opposite arms are equal. P into S equal to Q into R, where we can find out the unknown resistance Q equal to PS upon R. What is the application of Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is used for the measurement of low resistances. Wheatstone bridge along with operational amplifier is used to measure physical parameters such as temperature, light and strain. Quantities such as impedance, inductance and capacitance can also be measured using variation on Wheatstone bridge. What is the limitation of Wheatstone bridge? For low resistance measurement, the resistance of leads and contact becomes significant and introduces an error. For high resistance measurement, the measured parameter presented by bridge is so large that the galvanometer is insensitive to imbalance. The other drawback is change in resistance due to the heating effect of the current through the resistor. Excessive current may cause permanent change in the value of the resistance. This is the experimental setup or lab. In our lab setup, the Wheatstone bridge is built on a board. इसमें देखिए रेसिस्टेंसेस इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं, जहाँ P की वैल्यू 2.2 है, Q हमारा अननोन रेसिस्टेंस है जिसको इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना है, S की वैल्यू 2.25 किलो ओम है, and R is the variable resistance where 4 resistances are connected, जिसको हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं. यहाँ से हमें रेसिस्टेंस मिल जाएंगे. 0.3 के है, 0.1 के है, 0.1 के है और ये 0.1
1.28 के है। तो ये 4 रेसिस्टेंसेज इनको इस ब्रांच को हम आर्म कहते हैं, ब्रिज का आर्म कहते हैं। और इस पे जो सप्लाई दिया हुआ है उसको यहाँ हम डीसी सप्लाई से दे रहे हैं, जो 2 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। और ये गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ पे हम माइक्रो एम्पियर मीटर यूज कर रहे हैं। वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ हमने ये डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई को हमने कनेक्ट किया इस एपरेटस के साथ में। तो ये 2 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड हियर, ओके, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, एंड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी वी हैव कनेक्टेड दिस माइक्रोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो अभी हम इसमें अभी आप देखेंगे इस ब्रांच में हमने इसको इसका शॉर्ट किया, यानी हमने इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। अभी इस ब्रांच में आप देखिए एक बार रेजिस्टेंस को सीरीज़ में ऐड कर दीजिए, 1.28, 1.38, 1.48 एंड 0.3, 1.78। तो हमारा पहले रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में वी हैव सेट द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच आर एज 1.78 किलो ओम्स, ओके। इस कंडीशन में हम एक बार करंट मेजर करके देखते हैं इसका, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट बी एंड डी। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा माइक्रोमीटर बता रहा है 37.5, ओके। तो यहाँ हम वी कैन नोट डाउन 37.5 माइक्रो एम्पियर, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज़ 49.2 मिलीवोल्ट, ओके। अब आप एक बार इस माइक्रोमीटर की तरफ देखिए। जैसे जैसे हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, इसको बैलेंस लाने के लिए हमें इस रेजिस्टेंस को वेरी करना है। तो हमने पहले 0.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया, यानी इसको सर्किट से हटा दिया, इसको लूप से कनेक्ट कर दिया, यानी ये द करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर, नॉट थ्रू दिस 0.3 किलो, ओके। तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया। अभी देखेंगे अब करंट कम हो गया, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑब्वियसली कम हुआ होगा। और अब इसको फर्दर कम किया तो अभी देखिए ये और कम हो गया यहाँ, यानी 0.3, और ये 0.4 उसमें से माइनस कर दिया, यानी ये वाला रीडिंग हमारा होता है 1.38। अभी इसको फर्दर और कम करने के लिए हमको एक्चुअली अटेन करना है 0। तो अब हम इसको ये 0.2 वाले पे, यानी 1.28 किलो ओम पे हमने सेट किया इसको। एक बार यहाँ देख लीजिए, रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच में अब 1.28 किलो ओम है, और यहाँ हमारा जो करंट है वो 0.2 माइक्रो एम्पियर है। 0.2 माइक्रो एम्पियर इसलिए बता रहा है ये कि इस अब इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, देखिए आप इसको डिस्कनेक्ट करके देखिए एक बार यहाँ एपरेटस की तरफ देखिए। जैसे हम इसको हटाएंगे डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट नहीं है, यानी 0.5 माइक्रो एम्पियर का। इसका मतलब ये कि इसमें 1.5 माइक्रो एम्पियर का एरर है। तो इस वैल्यू को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, यानी 0.5 माइक्रो एम्पियर है सिर्फ। और इस कंडीशन में हम इसको बैलेंस, यानी इससे और फर्दर जब हम डाउन करेंगे इसको, तो एक बार इसका पोटेंशियल डिफरेंस और मेजर कर लीजिए। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.1 मिली वोल्ट है, यानी ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। फर्दर डाउन जाएंगे इस ब्रांच में रेजिस्टेंस को, यानी 1.28 से और नीचे हमारे पास एक वैल्यू है 1 किलो ओम का। तो इस 1 किलो ओम को जब हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो अब क्या हुआ, अगेन दिस ब्रिज हैज़ बिकम अनबैलेंस्ड अगेन। और अब क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। यानी मतलब क्या है कि 1.28 जो हमारा रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का, वही बैलेंस करता है इसको। अगर फर्दर डाउन इससे जाएंगे तो आप देखिए कंडीशन ये हो रही है। इस करंट को मेजर करने के लिए हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो अब ये करंट है हमारा 28 माइक्रो एम्पियर माइनस, ओके। तो चाहे तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं 28 माइक्रो एम्पियर माइनस विद माइनस साइन,
ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस भी अगेन वही होगा, देखिए चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आ गया, यानी 37.1 मिली वोल्ट। ओके, और यहाँ पे आपने जो देखा था वैल्यू वो था 0.5 माइक्रो एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस था 1.1 मिली वोल्ट। तो अब आप देखेंगे इस तरह जैसे 1.78 से हमने शुरू किया, फर्दर डाउन करके लाए, ये एक वैल्यू हमको ऐसी मिली जिसको हम बोल सकते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन है। अब इस जगह पे हमें पता चल गया 1.28 इसका रेजिस्टेंस है, हम क्यों पता कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।